Hello everyone, good morning and welcome to Arket classes Fulfilling Your Dreams. Good morning dear students. I welcome here you all on this online platform channel that is dedicated for the preparation of medical examination, that is NEET preparation. So today we are going to learn something new for this examination, that is how we are going to apply for the NEET examination and other criterias, age criteria, qualifications, essential qualifications and other things that is related to NEET. Before going for any examination, you must be very much prepared, very well prepared, and know about the examination, that the pattern of that and other things. Before starting that, we are going to start with a game changer point. Today's game changer point is aim high to achieve high. What is this aim high to achieve high? Students, you must remember that if your aim is high, अगर आप अपना लक्ष्य ऊंचा रख रहे हो, then you can achieve your goal. Your goal should be always high. Your aim should be always high. If you are having higher aim, सपोज दैट आप मेडिकल का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट का एग्ज़ाम, आपको अपने स्कोर के बारे में ध्यान रखना है कि आपको टॉप 100 में अपनी पोजीशंस बनानी है. इन दैट क्राइटेरिया आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे. सो आपको हमेशा अपने एम को ऊपर रखना है, बहुत अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करना है, अपने एम को छोटा नहीं रखना है, जिससे आप अपनी ये ऐसा कह सकते हैं कि आप अगर अपनी तैयारी को लो एम पे रखते हो तो आप अचीवमेंट आपका छोटा होगा, you will achieve less. But if your aim is high, you will achieve more. So aim high to achieve high. Now this is first episode, that is introduction to NEET. NEET एक परिचय जिसमें हम जानेंगे NEET है एक्चुअली क्या, और NEET के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. जो आप फॉर्म फिल करते हो तो हम कैसे फॉर्म फिल करते हैं, और बाकी सारे क्राइटेरियाज़ हम इंडिविजुअली देखते जाएंगे इस एपिसोड में. देखिए ये एपिसोड जो है, इट इज़ सुटेबल फॉर क्लास 11th स्टूडेंट, क्लास 12th स्टूडेंट एंड नीट एस्पायरेंट्स, everyone. I am Dr. Ashish Kumar Dubey presenting this for you so that you can prepare well for your NEET examination, and all those candidates who wish to be a doctor can understand it properly and apply for NEET examination next year or coming years. So let us see what is going to be there in NEET. See students, NEET is National Eligibility cum Entrance Test. This is the full form of NEET, that is National Eligibility cum Entrance Test. This is mandatory examination for, that is essential examination for taking admission in any undergraduate medical courses in India, and it is conducted by National Testing Agency. That is हम ये कह सकते हैं कि National Eligibility cum Entrance Test जो है, ये एक एग्ज़ाम है जो कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज़ में इंडिया में एडमिशन ले सकते हो. तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, यही इसका एग्ज़ाम कराती है. देखिए कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो. ये कोर्सेज़ हैं MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS. MBBS क्या है? MBBS है बैचलर ऑफ मेडिकल, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. BDS क्या है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी. BAMS क्या है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. एंड BUMS क्या है? बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी. BHMS is homeopathic medicine, and you can go BSMS, that is Bachelor of Siddha Medicine and Surgery. So NEET examination is mandatory for taking admission in any undergraduate medical course in India. बच्चों की देखिए आप सभी का एक ड्रीम होता है डॉक्टर बनने का, और जिन बच्चों का ये ड्रीम है, जिन स्टूडेंट्स का ये ड्रीम है टू बिकम ए डॉक्टर, दे have to go through the NEET examination, without which you cannot take admission in any undergraduate medical course. So let us see what are the different things. What is the eligibility criteria and qualification required for appearing or taking the examination of NEET? See students, essential criteria for taking NEET examination.
nationality, if you should be Indian nationals, non-resident Indians, overseas citizens of India, persons of Indian origin, and foreign nationals are eligible for 15% all India quota seat. That is, there are two different quotas in this NEET examination. One is a state quota, that is 85% seats are reserved for state quota, and 15% is eligible for all India quota seat. There is one restriction for Union Territory, that is newly formed Jammu and Kashmir and Ladakh students. They are not eligible for 15% all India quota seats. For more information, you can go through the information bulletin. The students of Jammu, Kashmir and Ladakh, to clarify the things, because it was declared by them, that means the government declared earlier that they will not participate in All India scheme. Now, what is the essential criteria for taking NEET examination? The candidate must have passed physics, chemistry, biology, biotechnology, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली. मतलब आपको क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में क्या करना है, पास होना ज़रूरी है. किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में किसी में अगर आप फेल हैं तो आप इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं. दूसरा मस्ट क्राइटेरिया क्या है? दूसरा मस्ट क्राइटेरिया है 50% मार्क्स टेकन टुगेदर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल हैं और उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ के आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 50% मिनिमम चाहिए. इसके बाद आप क्वालिफाइंग, आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए. देखिए, ये कंडीशन जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 40% मार्क्स है. एग्रीगेट मार्क्स, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का जो है ये 40% मार्क्स इनका क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. जबकि जनरल कैंडिडेट्स और EWS, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट जो हैं, उनका भी क्राइटेरिया जो है 50% है. एग्रीगेट क्या है? 50% मार्क्स आपका होना चाहिए. किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम में. और इंडिविजुअली सभी में किस में पास होना चाहिए आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में, या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी दोनों से कोई स्टूडेंट ऐसा ले सकता है. नाउ हम देखते हैं कि आगे इसमें और क्या कंडीशंस हैं. एज क्राइटेरिया क्या है? देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहा है तो उस कंडीशन में ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 ईयर्स ऑफ एज on what? The day or 31st December of the year in which he is going to take admission in undergraduate medical course. So this is the criteria. 17 साल मिनिमम होना चाहिए. सपोज यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन 2020, then your age should be 17 years on the 31st December of 2020. नेक्स्ट ईयर जैसे जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनकी एज दिसंबर 2031 को 17 साल कम से कम होनी चाहिए. ये तभी आप अपीयर हो सकते हैं. मिनिमम एज रिक्वायरमेंट. मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट जो है ये आपका 25 ईयर्स है. बट अभी कंडीशंस जो हैं थोड़ी इसमें कुछ कह सकते हैं पिटिशंस लगाई गई थी, पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसके कारण अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है. और इसके कारण आप देख सकते हो इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देख सकते हो अपर एज रिक्वायरमेंट के रिलेटेड. उसके अलावा 5 इयर्स रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है SC कैंडिडेट को, ST कैंडिडेट को, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को. और आप कह सकते हो कि फिजिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, फिजिकल प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट्स के लिए. नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन मोड नीट के लिए क्या होता है? एप्लीकेशन मोड इज ओनली ऑनलाइन. आप ध्यान रखिएगा कि नीट के एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन है सिर्फ ऑनलाइन मेथड से ही कर सकते हैं. कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट. जैसे एग्जांपल हमने लिया है 2020 का, तो ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मोड में. सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं? डन बाय एसेसिंग NTA वेबसाइट. NTA वेबसाइट पे आप जाइए. जो NTA वेबसाइट क्या है? ये NTA वेबसाइट है
nwt.nic.in, that is ntaneet.nic.in. The application form in एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा लिखा है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी दूसरे मोड के थ्रू ये एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ओनली ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली वन एप्लीकेशन, आपको एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन दे सकता है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आप नहीं दे सकते हैं और नहीं देना चाहिए आपको। और कैंडिडेट जो है अगर इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनको समरली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे ज़रूर ध्यान दीजिए और उनको पढ़ के उसके बाद ही इसमें अपीयर होने या अप्लाई करने के लिए प्रोसेस करिए। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किसका होना चाहिए, या तो आपका होना चाहिए या आपके पेरेंट्स का। इसके अलावा किसी और का फ़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन विल बी देयर, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपके फ़ोन नंबर पे जाएगी, SMS जाएगा, आपके मेल एड्रेस पे डिटेल चीज़ें जाएंगी। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको डायरेक्टली मिलेगी। इसलिए ये फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए या तो आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। ये इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्या आपका अपना फ़ोन नंबर और आपका अपना ईमेल एड्रेस। कैंडिडेट्स, एप्लीकेशन करने का क्या क्या बेसिक प्रोसेस है, अगर हम देखें तो 4 बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है आपको। रजिस्ट्रेशन पेज, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। दूसरा स्टेप जो है फिलिंग ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीटली भरते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, अपलोडिंग ऑफ स्कैंड इमेजेस को आप अपलोड करते हो। चौथा स्टेप क्या है, पेमेंट ऑफ फ़ी एंड स्टेटस ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ फ़ी, आपको फाइनली कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है और आपको फ्यूचर के लिए इसको सेव करके रखना है। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अपलोड करना है, देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, दैट इज़ वाइट पेपर पे ब्लैक इंक में होगा, रनिंग हैंड राइटिंग में होगा। कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो कि ब्लू इंक में होगा और क्लियर होना चाहिए। अगर आपका थंब की प्रॉब्लम है, थंब आपको किसी तरह से नुकसान है, नहीं है थंब, तो उस कंडीशन में आप लेफ़्ट की जगह जो राइट थंब यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट को अपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है, स्कैन कॉपी को। अब देखिए इसमें साइजेस क्या क्या हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का अगर आप साइज़ देख रहे हैं तो 10 KB से 200 KB, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ 50 KB टू 300 KB, कैंडिडेट सिग्नेचर जो है 4 KB टू 30 KB, कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इट शुड बी 10 KB टू 50 KB। कैंडिडेट का जो 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट है, इसकी फ़ाइल जो है, फ़ाइल की साइज़ 100 KB से 400 KB के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्या है एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर। देखिए एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। जनरल कैंडिडेट का एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर 1500 है। जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC नॉन क्रीमी लेयर इट इज़ 1400, SC ST PWD एंड ट्रांसजेंडर्स इनका 800 रुपीज़ है, प्लस GST, सभी के लिए GST अप्लीकेबल है, 18% GST लगता है अप्रॉक्सीमेटली। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पेमेंट जो है आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यू कैन पे विथ डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI मीडियम, वट एवर। NEET actually NTA provides correction for the application. You can correct whatever error is there from 15th January 2020. This is an example for 2020 to 31st January 2020. ये 15 से 16 दिन का आपको टाइम दिया गया था, ताकि जिन भी एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न। नीट का जो एग्ज़ाम होता है, ये देखिए मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मेडिकल में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसमें क्या क्राइटेरिया है। सब्जेक्ट्स आपके 3 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटल सिलेबस जो है NCERT का सिलेबस है। अगर आप इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे तो आपको डिटेल मिलेगा।
नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस फिजिक्स के 45 होते हैं, केमिस्ट्री के 45 होते हैं, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 180 मार्क्स का फिजिक्स होता है, 180 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है एंड 360 मार्क्स का क्या होता है, बायोलॉजी होता है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चन के साथ साथ अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे, दैट इज 4 ऑप्शंस विल बी देयर एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर सिंगल करेक्ट आंसर और बेस्ट ऑप्शन। जो भी आंसर आपका है उसको उसमें एक सिंगल करेक्ट आंसर होगा जिसे आपको चूज़ करना होगा और उसमें आंसर देना होगा। ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होता है, दैट इज़ 180 मिनट्स का। देखिए नॉर्मल टाइमिंग इसका जो एग्ज़ाम का है वो 2 बजे दोपहर से लेके 5 बजे शाम तक का है, 3 घंटे का पेपर है। तो इसमें देखिए जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके सारे आंसर सही लग रहे हों। उस कंडीशन में आपको बेस्ट आंसर चूज़ करना है कि कौन सा आंसर उसका बेस्ट आंसर है। देखिए नीट का एग्ज़ाम 2020 का जो है अभी पेपर एंड पेन बेस्ड टेस्ट है। पेपर एंड पेन बेस्ड टेस्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। तो पेपर एंड पेन बेस्ड टेस्ट है, ओएमआर सीट पे होता है, जिसमें आपको आंसर्स ओएमआर सीट में करने पड़ते हैं, कलर करने पड़ते हैं, बबल्स को कलर करना पड़ता है, जो कि मशीन के थ्रू स्कैन होता है और उसमें आपको क्या होता है, डायरेक्टली मार्क्स दे दिए जाते हैं। ये जब ओएमआर सीट आप जो भरेंगे आंसर, इसमें बॉल पॉइंट पेन का यूज किया जाता है। नॉर्मली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करते हैं, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का यूज करते हैं। जो भी आप आंसर देंगे वो एनटीए वेबसाइट पे रिजल्ट्स आएंगे। एनटीए वेबसाइट पर जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्या और मिलेगा, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पांस, जो आपका रिस्पांस रहेगा उसका डिस्प्ले होगा और क्या होगा, आंसर्स की जो है साथ में आंसर की भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये एग्ज़ाम जो है टोटल 720 नंबर का है, टोटल 180 क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स जो है 720 मार्क्स हैं। तो ये इस तरह के एग्ज़ाम पैटर्न है, इस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन प्रॉपरली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट इज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लांस। देखिए ये 2020 के हिसाब से है, जो कि हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने का डेट था वो 2 दिसंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक था, जो कि 11:50 रात तक था और आप इसमें 1 जनवरी तक इसको पे कर सक रहे थे। तो 1 जनवरी तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते थे। अब देखिए अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हो गया है तो एग्जामिनेशन सेंटर और डेट एंड टाइम ऑफ द एग्ज़ाम विल नॉट बी चेंज्ड, वट एवर हैज़ बीन मैंशनड ऑन योर एडमिट कार्ड दैट विल बी द फाइनल। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स जो हैं, जो आप लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज फॉर कलर्ड फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड का कलर्ड फोटोग्राफ्स आपके पास रखना है, ताकि आपके एडमिशन्स के लिए और काउंसलिंग के समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। द फोटोग्राफ आर टू बी यूज्ड फॉर अपलोडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भी होगा और काउंसलिंग के समय भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो कि www.nta.ac.in NTA वेबसाइट है और nta.neet.nic.in ये भी नीट की वेबसाइट है। तो रिज़ल्ट आपके NTA वेबसाइट दैट इज़ www.nta.ac.in पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कई सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखना। मेरा सजेशन यहाँ पे ये होगा कि आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सेपरेट फाइल बना के रखिए, जिसको आप सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें एक साथ रख लीजिए, तब आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। देखिए ये जो एग्ज़ाम है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, दिस इज़ इंटायरली ऑनलाइन, सो यू डू नॉट नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी मेल, फैक्स और पोस्ट, एनीथिंग, यू डू नॉट नीड टू सेंड इट और सबमिट इट टू दी NTA। सो सारा कुछ जो भी है वो ऑनलाइन होगा। आपको कंफर्मेशन पेज को प्रिंट करके अपने लिए सेफ रख लेना है। दूसरी चीज़, कभी भी जब आप इसके लिए फॉर्म भर देते हैं तो आपका किसी भी कंडीशन में फ़ी वंस सबमिटेड विल नॉट बी रिमिटेड बाय टू द कैंडिडेट बाय NTA अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं तो सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू रेगुलरली विजिट दी वेबसाइट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। आप जो इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है, काउंसलिंग के समय आप उसको ध्यान रखिए कि उस पर आप रेगुलरली विजिट कीजिए। देखिए
देखिए हेल्पलाइन नंबर है 012068952200 और ईमेल एड्रेस है जिसमें आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं neetuzenta@nic.in। आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर देखिए सारे सेंटर्स पे जो है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश एंड उर्दू के क्वेश्चन पेपर सारे सेंटर्स पे अवेलेबल रहते हैं और जो रीजनल सेंटर्स हैं उनमें अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश के साथ मिलेंगे। जैसे आसाम में अगर आप देखेंगे तो आपको असमीज़ प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो सभी में इंग्लिश तो रहेगी ही, साथ में रीजनल लेवल के क्वेश्चन पेपर रीजनल एरिया में होंगे। जैसे आप अगर अपना एग्जाम गुजरात में दे रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द गुजरात, इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन बंगाल, देन देयर विल बी provision for providing you the question paper in English as well as Bengali. So you should opt for that. So that you can appear easily in so that you can understand question properly. मैं सजेस्ट करूँगा हिंदी एरिया में जो भी बच्चे रहते हैं उनको ये हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज एरिया में जो भी बच्चे हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि यू शुड ऑप्ट फॉर बाईलिंगुअल क्वेश्चंस, मींस दैट इज़ हिंदी अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता है, जिससे आपको समझने में आसानी होती है। हम डिटेल में देखेंगे कि क्या इसमें कैसे हम अप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए ये चेक लिस्ट है जो कि आपको जब आप फॉर्म जमा करते हो तो आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है, चेक कर लेना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट्स हैं। जैसे वेदर दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द टेस्ट, क्या आप एलिजिबल हैं टेस्ट के लिए, ये आप चेक कर लीजिए। क्या आपने अपने जेंडर को प्रॉपर्ली सेलेक्ट किया है, मेल फीमेल और जो भी है उसको आपने सेलेक्ट किया है। दैट आपने अपनी कैटेगरीज़ को प्रॉपर्ली सेलेक्ट किया है, या पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी जो है इसको आपने कॉलम को प्रॉपर्ली भरा है या नहीं भरा है। वेदर आपने प्रिंट आउट कन्फर्मेशन पेज का लेके अपने रिकॉर्ड के लिए सेव किया है या नहीं किया है। जब भी ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो तो इन सारे क्राइटेरिया को आपको वेरीफाई करके चेक करके रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट जो है एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जो है इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए। नीट इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन दिस टू गेट SCET इन मेडिकल कॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं। कुछ नेक्स्ट ईयर पिछले साल में अगर आप देखो तो लगभग ज़्यादातर गर्ल्स स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जामिनेशन, सो बॉयज़ आर लेस एंड गर्ल्स आर मोर गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जामिनेशन। सो कंपटीशन इन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा है और बॉयज़ में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 6 लाख स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन आउट ऑफ 11 लाख, टोटल 11 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे। नाउ अब हम देखते हैं कि NTA जो एग्ज़ाम करा रहा है नीट का, इट इज़ मस्ट फॉर टेकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। जैसा मैंने आपको बता दिया, बिना आप नीट क्वालिफाई किए हुए आप कभी भी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन इंडिया में कहीं भी नहीं ले सकते। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर वीक इन फिजिक्स एंड मोस्ट आर गुड इन बायोलॉजी। ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने बायोलॉजी में क्वेश्चंस रॉन्ग किए तो यू आर अंडर मोर हार्मफुल सिचुएशन, मोर मीन्स लूजिंग सिचुएशन कंपेयर टू इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग इन फिजिक्स। तो डूइंग रॉन्ग इन बायोलॉजी इज़ मोर हार्मफुल एंड मोर लॉस टू यू कंपेयर टू डूइंग रॉन्ग इन फिजिक्स। तो आपको बायोलॉजी में रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं। कि क्राइटेरिया जो है अगर आप रैंकिंग की बात देखेंगे तो बायोलॉजी इसमें रैंकिंग में कंसिडर की जाती है। देखिए सिंगल मार्क कैन चेंज योर फ्यूचर एंड लाइफ। यहाँ पे जहाँ पे एडमिशन्स होते हैं उसमें एक मार्क्स अगर आपके कम होते हैं तो आपकी रैंकिंग में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखकर एग्ज़ाम में अटेम्प्ट लेना चाहिए और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट लेके आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन नीट सीरियस प्रिपरेशन इज़ अ मस्ट। आपको बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीरियस प्रिपरेशन नहीं करते हैं और आप सीरियस नहीं हैं स्टडीज़ में तो आप ये समझ लीजिए कि अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
इस कारण से आप क्या कर सकते हैं कि for getting how you can get a good score in NEET, you can see my episode on that is how to score high in NEET. So ये आप इसे देख सकते हैं, ये जल्दी ही आने वाला है, हम जल्दी ही इसे अपलोड करेंगे यूट्यूब पे. नेक्स्ट हम देखते हैं. देखिए, आर्कित क्लासेस इज फुलफिलिंग योर ड्रीम, इज ऑलवेज committed to your success. We are always here to help you out. Thank you so much, dear students. Please like, share and subscribe our YouTube channel and contact us at our WhatsApp number 9558176132. Email address arkitclasses@gmail.com. We are starting 51 days quick revision course from 2nd June 2020. Kindly join us to take advantages and take admissions in your medical college, desired medical college. Thank you very much. Thank you so much.